वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITPM सेकंड। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल ERP सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स का स्टडी किया था डिटेल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ERP सिस्टम का आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the ERP architecture. So why we study the ERP system architecture? So that is the question. So with the help of management and implementation team, understand in detail the features and components of the enterprises system. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स एंड जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ERP सिस्टम में, ठीक है, एंटरप्राइज सिस्टम में, वो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दिस एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर का यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है, so that we can know the features and components of this enterprise system and how it can be work together. Also, it will provide the visual representation of the complex system interfacing along this ERP application and the database, operating system and also legacy application and networking. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर में विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसमें जो इंटरफेसिंग होगा ERP एप्लीकेशन एंड डेटाबेस का, ठीक है, तो किस तरह से ये इंटरकनेक्ट किया गया है, तो ये हमें यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर में शो होगा। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी दिस ERP आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट architecture is the layered architecture. So ERP system architecture is organized in layers or the tiers to manage the system complexity in order to provide the scalability and the flexibility. ठीक है, तो ERP आर्किटेक्चर को यहाँ पे लेयर्स में अरेंज किया गया है। ठीक है, जो अलग अलग टायर्स में यहाँ पे लेयर्स है। ठीक है, टायर 1 टायर 2 वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड दैट कैन मैनेज द complexity of the system and it will provide the scalability and the flexibility. Okay, so traditional ERP architecture is 3 layer. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल ERP आर्किटेक्चर है वो 3 लेयर्स का है एंड विथ ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम फंक्शन। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर है दैट विल प्रोवाइड द पर्टिकुलर functions in the system. So the data tier that is used for the data management, business tier that is used for business logic of functional module, and third one is the presentation tier that is end user interface that is GUI. ठीक है, तो ट्रेडिशनल ERP आर्किटेक्चर में ये मेन 3 लेयर्स है। डेटा टायर जो डेटा को मैनेज करेगा, होल डेटा को। बिजनेस टायर में जो बिजनेस के रिलेटेड लॉजिकल मॉड्यूल्स है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कनेक्ट करेगा। देन थर्ड जो है प्रेजेंटेशन, जिसमें एंड यूज़र को जो रिपोर्ट्स है या फाइनल जो आउटपुट है दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस प्रेजेंटेशन टायर। सो दिस बिजनेस टायर फीड्स द डेटा टू द प्रेजेंटेशन टायर। तो जो बिजनेस टायर है वो प्रेजेंटेशन टायर को यहाँ पे डेटा फीड करेगा एंड द डेटा टायर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम। एंड जो डेटा टायर का वर्क है या फंक्शन है वो जो ऑल डेटा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का वो वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पुटअप करेगा। ठीक है, एंड इट विल form the good relationship between internal and external system. So the business application tier needs to have a web browser and reporting tool where business process and end user interact with the system. ठीक है, तो यहाँ पे जो business application tier है तो उसमें एक वेब ब्राउज़र होगा। ठीक है, एंड reporting tool is required for processing the business and also the presentation tier will use the end user interaction with the system. Then we'll study the types of ERP architecture. So ERP application are most commonly deployed in distribution and often widely dispersed manner.
So while the servers may be centralized, the clients are usually spread to the multiple location throughout the enterprise. ठीक है, तो ERP सिस्टम में जो सर्वर्स यूज होंगे फॉर डेटा स्टोर, so that can be a centralized one. So the first type of ERP architecture is a two-tier implementation. So in typical two-tier architecture, the server handles both the application and database duties. ठीक है, तो टू टायर इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर में जो सर्वर होगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन एज वेल एज डेटाबेस दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा. यहाँ पे द क्लाइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा एंड पासिंग द यूज़र इनपुट बैक टू द सर्वर. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा एंड पासिंग द यूज़र इनपुट बैक टू द सर्वर. तो जो इनपुट आएगा यूज़र से दैट कैन बी अ सेव इनटू द सर्वर. सो वाइल देयर मे बी मल्टीपल सर्वर एंड द क्लाइंट्स may be distributed across the several types of local and whole area links. So this distribution processes the responsibility remains the same. तो यहाँ पे जो यूज़र्स एंड सर्वर्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स पॉसिबल है एंड क्लाइंट्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज़ लोकल एंड वाइड एरिया लिंक्स थ्रू. So that will possesses the responsibility remains the same. So some of the benefits are easy to use and access and it has the low cost and high performance. तो टू टायर आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पे यूज़ करने के लिए ईजी है. ठीक है, जो भी डेटा एक्सेस होगा यूज़र को दैट कैन बी आल्सो ईजियर. कॉस्टिंग जो रहेगा टू टायर आर्किटेक्चर का दैट विल बी अ लो एंड परफॉर्मेंस इज हाई. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. सो प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स GUI एप्लीकेशन मीन जो ERP सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर सिस्टम पे. ठीक है, सो दैट विल बी अ प्रेजेंटेशन टायर वर्क. देन CPU इज़ यूज फॉर द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस लेयर. ठीक है, तो जो भी डेटा है वो यहाँ पे सर्वर पे सेव होगा. ठीक है, and third one is the this raw data which is provided to this application and the application will process that data and display on the this display device of the computer, that is through the GUI applications. So that is the two tier architecture or the implementation. ठीक है, तो इस तरह से टू टायर आर्किटेक्चर ERP का वर्क करता है. मीन्स इट विल हैंडल द application as well as database at a time in the server. That's why it is called as a two tier architecture of ERP. Second type of architecture of ERP is three tier client server implementation. So in three tier architecture the database and application functions are separated into the independent ऑपरेटिंग यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे थ्री टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस एंड जो एप्लीकेशन फंक्शंस होंगे, ठीक है, तो वो सेपरेटली वर्क होंगे इंडिपेंडेंटली ऑन द ऑपरेटिंग यूनिट्स. जैसे टू टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सेम फंक्शन था. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट या सेपरेट वर्क करेंगे. सो दिस इज़ वेरी टिपिकल फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ ERP deployment. So in this scenario, satisfying the client request requires two or more network connection. ठीक है, तो लार्ज ERP सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. ठीक है, सो इन दैट केस जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, तो उसके लिए दो से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्शन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा. सो इनिशियली द क्लाइंट एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन विद द एप्लीकेशन सर्वर. तो सबसे पहले जो यूज़र है या क्लाइंट है वो उसका कम्युनिकेशन डेवलप होगा विद द एप्लीकेशन सर्वर, जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे ERP के लिए. द एप्लीकेशन सर्वर देन क्रिएट्स अ सेकंड कनेक्शन टू ड डेटाबेस. उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो एक कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस से, क्योंकि एप्लीकेशन में डेटा डेटाबेस से आएगा एंड एप्लीकेशन उस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड GUI पे मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर पे कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर पे वो उसको डिस्प्ले कर देगा प्रॉपर फॉर्म में.
So that is the simply working principle of this ERP. So some of the benefits are scalability, reliability, flexibility, maintainability and reusability, and security of this three-tier architecture implementation. So here in figure, three-tier architecture implementation is given. So in that, first is the presentation layer, that is GUI application of ERP is there. Second will be the application layer. Third one is the data layer. So this data can be entered into the application layer, and then it is processed into the application, and then in suitable form it will display to the user by using this GUI application, which is a presentation layer. So that is the implementation of three-tier architecture. मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा गैदर होगा सर्वर पे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा लेयर. जो डेटा लेयर का एक पार्ट है वो डेटा एप्लीकेशन लेयर, मीन्स जो एप्लीकेशन हम ERP के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पे वो प्रोसेस होगा इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, तो कंप्यूटर की CPU में. देन उसके बाद वो सुटेबल डेटा यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले होगा जो कि कंप्यूटर का मॉनिटर है, दैट इज़ GUI एप्लीकेशन, जो कि एक प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन है. थर्ड ERP का आर्किटेक्चर जो है वो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर है. द वेब बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफन डिस्क्राइब एज अ फोर्थ टायर वेयर द प्रेजेंटेशन टायर इज स्प्लिट इनटू द वेब सर्विसेज टायर एंड वेब ब्राउज़र टायर. ठीक है, तो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो थर्ड टाइप का आर्किटेक्चर है ERP सिस्टम का. ठीक है, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन टायर है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेब सर्विस टायर एंड सेकंड जो पार्ट है वो वेब ब्राउज़र टायर. इस प्रेजेंटेशन टायर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है दो अलग अलग टायर्स में. एंड एंड यूज़र हैव द एक्सेस टू ERP एप्लीकेशन ओवर द वेब. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड यूज़र रहेगा उसको ये ERP एप्लीकेशन अवेलेबल होगा थ्रू द यूज़ ऑफ वेब, दैट इज़ इंटरनेट. So easily integrate the ERP application with the existing system. So web-based architecture allows the better system to system integration, and PeopleSoft server symmetric internet architecture is the example. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है. तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम ERP एप्लीकेशन को हमारे सिस्टम पे या कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं. सो इट इज़ ईजी to operate and also integrate with the different system. So that is the benefit of this web based architecture which is available online. ठीक है, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन टायर है उसको वेब सर्विसेज एंड वेब ब्राउज़र में डिवाइड किया गया है. सो दैट इज़ द वेब बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ ERP सिस्टम. नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज द oriented architecture, also known as object oriented architecture for web platform. ठीक है, तो oriented architecture को object oriented architecture भी कहा जाता है वेब प्लेटफॉर्म का. so it breaks the business tier into the smaller distinct units of services collectively supports. so यहाँ पे जो बिजनेस टायर है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया है स्मॉल एंड डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ सर्विस में, and that can be used for supporting an ERP functional modules. So allows the message interact between any service consumer and service provider. So consumer from a device using any operating system in any language can use this service. Service oriented architecture separate the service provider from the service consumer. ठीक है, तो इसमें जो मैसेज होगा वो इंटरेक्ट होगा बिटवीन सर्विस कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, मीन्स जो सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड जो सर्विस कंज्यूम करेगा, दैट इज़ यूज़र. सो कंज्यूमर फ्रॉम द डिवाइस यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनी लैंग्वेज कैन यूज दिस सर्विस. ठीक है, तो जो कंज्यूमर या यूज़र है कोई भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकता है या उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो. ठीक है, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये
सर्विस सपोर्ट करता है, ठीक है। सो दिस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द सर्विस कंज्यूमर। तो यहाँ पे फिगर में दिखा है दैट कंज्यूमर and a provider is there. So there is a request and reply type of service is in between the consumer and provider. तो provider and consumer में request and reply type जो system है वो यहाँ पे develop होगा. So this architecture of an ERP system influences the cost, maintenance and the use of the system. So if purchase ERP architecture is often driven by the vendors. So there are two types. First is a logical focus on the supporting needs of the end user and the physically focuses on efficiency of the system, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ERP सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर्स, सो यहाँ पे दो तरह के ERP आर्किटेक्चर पॉसिबल है। पहले जो होगा वो लॉजिकली फोकस होगा, जो भी यूज़र के या एंड यूज़र के नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली इस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होगा। सेकंड जो रहेगा, जो फिज़िकल फोकस रहेगा इफ़िशियंसी ऑफ द सिस्टम। तो सेकंड जो आर्किटेक्चर ERP का, उसका मेनली फोकस रहेगा इफ़िशियंसी ऑफ द सिस्टम। देन नेक्स्ट टॉपिक इज implications for management. So enterprise architecture is an important technology for the long term functioning of the organization. तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म के फंक्शनिंग में यहाँ पे हेल्प करेगी। Also this ERP architecture decisions are complex because their impact goes beyond the system and technology to the people, so organizational policy and the business processes, ठीक है। तो यहाँ पे जो ERP आर्किटेक्चर के जो डिसीजंस है वो कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट गोज़ बियॉन्ड द सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजी टू द पीपल and also the organizational policy and business processes. So ERP architecture must be flexible to support the diverse set of hardware and software platform. तो ERP आर्किटेक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर में होना चाहिए, जो कि सपोर्ट करे हार्डवेयर को एंड जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो दिस ERP आर्किटेक्चर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल वन. Also the management must be learn how to filter out the hyper technologies that do not provide the value to their organization, ठीक है। तो मैनेजमेंट को यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है और जो चीज़ें यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट थिंग्स आर filter out by the management, so that is necessary. Also the top management must therefore be involved in designing the architecture from the very beginning of the ERP implementation project. तो जब भी ERP implementation प्रोजेक्ट रन होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या डिज़ाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ERP सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इसके डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ERP आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी किया है जो कि 2, 3 टायर एंड वेब आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ERP के जनरल मॉड्यूल्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।